Dear students, now we will discuss another method for the preparations of alkyl halides or haloalkanes. Previous methods में हमने अल्कोहल से haloalkane या alkyl halide को prepare किया. After that hydrocarbons से both from alkenes as well as from alkanes. और alkanes में हमने वो important concept वहां पे discuss किया selectivity and reactivity का. After that another method for the preparations of alkyl halides is by halogen exchange method. This is the third method for the preparations of haloalkanes. First method में from alcohols उसके अपने कुछ parts थे from what we can say halogen acids, after that phosphorus halides, after that thionyl chloride. After that हमने hydrocarbon से alkene and alkane पे alkyl halide की preparation कराई. यहाँ पे अब halogen exchange method. Dear students, it has been found that when alkyl halide, what we can say chloroalkane or what we can say alkyl bromide, alkyl chloride or alkyl bromide is treated with sodium iodide in acetone. It has been found that when alkyl chlorides or alkyl bromides are heated with sodium iodide in acetone, there is the formation of, there is halogen exchange. यहाँ पे आयोडीन किसको एक्सचेंज करता है? अगर हमने अल्काइल क्लोराइड ले लिया तो क्लोरीन को एक्सचेंज कर लेगा, अगर हमने अल्काइल ब्रोमाइड ले लिया तो ब्रोमीन को एक्सचेंज कर लेगा. फॉर एग्जांपल हमने अल्काइल क्लोराइड ले लिया, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ Ri प्लस, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ NaCl. रिमेंबर दैट इसकी प्रेसिपिटेट बन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है. हाँ, इसकी सोडियम क्लोराइड की यहाँ पे प्रेसिपिटेट बन जाती है. रिमेंबर दैट this is known as halogen exchange method, and the name of this very reaction is Finkelstein reaction. What is a Finkelstein reaction? In case of Finkelstein reaction, we are preparing alkyl iodides. How? From alkyl chlorides or from alkyl bromides when they are treated with sodium iodide and acetone is the solvent. This is the solvent. Remember it. This is the reaction. इसका मैकेनिज्म सिंपल टर्म्स में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. I नेगेटिव Cl नेगेटिव को रिप्लेस करता है. दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बस बहुत सिंपल है. फॉर एग्जांपल we will take CH3CH2Br and we will treat it with NaI in acetone. There is the I will replace Br. There is the formation of CH3CH2I plus NaBr. और यहाँ पे CH3Cl को हम सोडियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कराएंगे इन एसीटोन. रिमेंबर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ CH3I plus NaCl. इसकी प्रेसिपिटेट है. शाबाश. नाउ this is a named reaction which is known as Finkelstein reaction. Finkelstein reaction में हम alkyl iodides की preparation कराते हैं from alkyl chlorides or alkyl bromides when they are treated with sodium iodide in acetone. हाँ, शाबाश. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यही रिएक्शन है Finkelstein की. मैकेनिज्म में I रिप्लेस करता है Cl को. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. वेरी सिंपल. हाँ, this very nucleophile replaces this very nucleophile. I negative here replaces Br negative. I negative replaces here. Exclusively, this very Finkelstein reaction is for the preparation of alkyl iodides. हमने वहां पे
क्लोरिनेशन ऑफ एल्कीन में कहा कि सुटेबल मेथड है, वहां पे सिर्फ हम अल्काइल क्लोराइड्स की इजीली प्रिपरेशन करा सकते हैं। अल्काइल फ्लोराइड्स की मैंने आप लोगों को बताया कि वहां पे कौन सी डिफिकल्टी आ जाएगी। अल्काइल आयोडाइड्स की वहां पे मैंने आप लोगों को कहा कि व्हाट आर द लिमिटेशंस देयर। वहां पे हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करना पड़ता है, वहां पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया। बट दिस वेरी मेथड, फिंकलस्टाइन मेथड, इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स। शाबाश। देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने कहा कि यहां पे हम एक, फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक CH3CH2Cl प्लस सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन. Acetone is propanone. CH3 C double bond O CH3. This is its common name is acetone. IUPAC name propanone. Huh? Shabash. This is acetone and it is a covalent compound. Covalent compound. Remember that, dear students, अगर कहीं पे इस तरह से रिएक्शन होगी CH3CH2I प्लस NaBr or NaCl इन एसीटोन, रिमेंबर दैट ये रिएक्शन होगी ही नहीं। यहां पे आप लोग कहोगे कि आयोडीन इज रिप्लेसिंग, हियर आयोडीन इज रिप्लेसिंग क्लोरीन, व्हाई नॉट हियर ब्रोमीन विल रिप्लेस आयोडीन? Remember that, dear students, in case of Finkelstein reaction, we are using sodium iodide in acetone, and alkyl chlorides or alkyl bromides are treated with sodium iodide in acetone, and this is the named reaction known as Finkelstein reaction, and in that very reaction there is the preparation of alkyl iodides. ये reaction क्यों नहीं होगी? Remember that, dear students, जो एसीटोन होता है ये एक कोवलेंट कंपाउंड होता है। यहां पे मैं लिखूंगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड या सोडियम फ्लोराइड। फेजान्स रूल में, केमिकल बॉन्डिंग में फेजान्स रूल 11th में आपने पढ़ा होगा। एज पर फेजान्स रूल, स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन के बीच में जब केमिकल बॉन्डिंग हो जाती है, स्मॉलर द कैटायन, लार्जर द एनायन, मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, मोर द कोवलेंट कैरेक्टर, जो पोलराइजेशन का कंसेप्ट वहां पे है फेजान्स रूल में। स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन को ज्यादा पोलराइज करता है, विद द रिजल्ट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एनायन की, वो इन बिटवीन कैटायन एंड एनायन के बीच में आ जाती है और वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाती है, विद द रिजल्ट इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है एज पर फेजान्स रूल। अगर स्मॉलर कैटायन होगा वो लार्जर एनायन होगा। यहाँ पे देख लीजिए Na पॉजिटिव तो सेम है, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na positive, Br negative, Na positive, I negative. Whenever we are moving from top to bottom, in case of shabash, whenever we are moving from top to bottom or down a group, atomic size increases. कैटायन तो सेम है, दैट मीन्स सोडियम और आयोडाइड के बीच में जो बॉन्ड होगा, जो सोडियम आयोडाइड होगा, इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। एज देयर इज अ कंसेप्ट लाइक डिसॉल्व्स लाइक, दैट इज व्हाई in case of Finkelstein reaction, when we are using sodium iodide in acetone, sodium iodide is soluble in acetone, while as NaBr, NaCl are insoluble. That is why there is the formation of the precipitate. यहाँ पे CH3CH2I plus NaCl की precipitate यहाँ पे बन जाती है। Why? Because NaCl, NaBr are they have ionic character. इनमें ionic character होता है, इनमें covalent character as compared to NaI नहीं होता है as per Fejan's rule. That is why
यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि NaBr और NaCl एसीटोन में insoluble है. Because acetone is a covalent compound, NaBr, NaCl, these are ionic compounds. As like dissolves like. Ionic will dissolve in ionic, covalent will dissolve in covalent. Yeah, covalent compounds are soluble in covalent compounds, while as ionic are soluble in ionic. Ionic covalent में covalent compound में insoluble होता है. That is why these are ionic, these are insoluble in acetone. हाँ? शाबाश. This is the reason why not the reverse reaction will take place. हाँ? CH3 CH2I plus NaCl ये रिवर्स रिएक्शन क्यों नहीं हो सकती है? हम क्यों नहीं अल्काइल क्लोराइड से अल्काइल ब्रोमाइड प्रिपेयर कर सकते हैं? हाँ? शाबाश. थ्रू फिंकलस्टाइन रिएक्शन. हाँ? शाबाश. बस इतना याद रख लीजिए. फिंकलस्टाइन रिएक्शन में अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन के साथ ट्रीट कराते हैं. वहां पे हैलोजन एक्सचेंज होती है. दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज मेथड और हैलाइड एक्सचेंज मेथड है. शाबाश. इसका रीजन भी मैंने बताया. नाउ अनदर नेम्ड रिएक्शन यहां पे हमने वो डिस्कस की स्वार्ट्स मेथड. स्वार्ट्स मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल फ्लोराइड्स. स्वार्ट्स रिएक्शन. इन केस ऑफ स्वार्ट्स रिएक्शन यहां पे CH3 CH2Cl प्लस Hg2F2 AgF SbF3 या AsF3 are treated with alkyl chlorides or RBr. यहाँ पे RCl CH3 CH2 R पार्ट होता है एंड Cl. यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज होती है. लेकिन Swartz, this very reaction is known as Swartz reaction or Swartz method for the preparation of alkyl fluoride. यहाँ पे भी हेलोजन एक्सचेंज होती है. फ्लोरीन किसको एक्सचेंज करता है? क्लोरीन को. अगर Hg2F2 के साथ ट्रीट कराया एट दैट वेरी टाइम ये हमें 2 टाइम्स देना पड़ेगा. यहाँ पे 2 टाइम्स CH3 CH2F एंड Hg2Cl2. शाबाश. अगर ये ले लिया RCl plus AgF, there is the formation of RF plus AgCl. इसकी precipitate. शाबाश. RBr plus SbF3. This is 3 times. Here 3 times RF plus SbBr3. इसकी भी precipitate. Here in this very case, Swartz reaction, exclusively we are preparing alkyl fluorides, while as in case of Finkelstein reaction we are preparing alkyl iodides. Alkyl chlorides and alkyl bromides. Alkyl chloride या alkyl bromide के साथ अगर ये reagents हमने यूज किए, alkyl fluoride की preparation हो जाएगी. Swartz reaction. अगर हमने alkyl chloride अल्काइल ब्रोमाइड के साथ सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन ले लिया तो अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन होगी. फिंकलस्टाइन रिएक्शन. नाउ अनदर मेथड. दिस वाज हैलोजन. दीज वर द 2 पार्ट्स ऑफ हैलोजन एक्सचेंज मेथड. वन वाज फिंकलस्टाइन रिएक्शन एंड अनदर इज स्वार्ट्स रिएक्शन. नाउ one method for the preparations of named reaction is there. Fourth preparation for haloalkanes or alkyl halides is Hansdiecker reaction. Hansdiecker reaction. This is also known as Borodin-Hansdiecker reaction. In case of Hansdiecker reaction, silver salt of carboxylic acid. This is known as silver salt of carboxylic acid. RC=OONA. सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अगर यहाँ पे पोटेशियम होगा तो पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज नोन एज सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. These very silver salts or potassium salts or sodium salts are prepared when carboxylic acids RCOOH are treated with AgOH, KOH or NaOH. अगर ये बेस सिल्वर हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट किया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ. अगर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ तो सिल्वर साल्ट Ag
हैं, plus H2O, plus H2O, हैं, शाबाश. When acid reacts with a base, there is the formation of the salt. यहाँ पे R C double bond O OK plus H2O, हैं, यहाँ पे R C double bond O O Na plus H2O. This is how we are preparing, शाबाश, the salts from carboxylic acids. हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड होता है, अगर उस कार्बोक्सिलिक एसिड को बेस के साथ ट्रीट करा है तो सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. दिस इज पोटेशियम साल्ट, दिस इज सोडियम साल्ट. शाबाश. नाउ in case of Hansdicker reaction, when silver salts of carboxylic acids are treated with bromine, in कार्बन टेट्राक्लोराइड एक सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट. रिमेंबर दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ, जिस तरह से हेलोजन एक्सचेंज मेथड फर्स्ट में हम फिंकलस्टाइन नेम्ड रिएक्शन है, वहां पे हम अल्काइल आयोडाइड्स की प्रिपरेशन कराते हैं, उसके बाद स्वाट्स मेथड में अल्काइल फ्लोराइड्स की प्रिपरेशन कराते हैं, एंड आफ्टर दैट देयर इज हंसडिकर रिएक्शन, यहाँ पे हम अल्काइल ब्रोमाइड्स की प्रिपरेशन कराएंगे. वहां पे RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. शाबाश. Hansdicker reaction is exclusively for the preparation of alkyl bromides. शाबाश बेटा. मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म वहां पे हेलोजन एक्सचेंज मेथड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एक हेलोजन एज न्यूक्लियोफाइल दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज करता है, या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. शाबाश. यहाँ पे देख लीजिए RC double bond O, this is O negative, Ag positive, silver salt, because silver और this is metal, this is non metal, इनके बीच में एक एक्चुअली एक आयनिक बॉन्ड था, दैट इज व्हाई यहाँ पे मैंने O नेगेटिव Ag पॉजिटिव प्लस Br सिंगल बॉन्ड Br. रिमेंबर दैट डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आयन डाइपोल इंटरेक्शंस का मैकेनिज्म सुना होगा. आयन डाइपोल, जिस किसी भी कंपाउंड में डाइपोल होता है, वो जो इसके बगल में एक नॉन पोलर कंपाउंड, दिस इज नॉन पोलर कंपाउंड, दिस इज पोलर कंपाउंड, इसमें शाबाश आयन डाइपोल इंटरेक्शन है. ये जो नॉन पोलर कंपाउंड है इसमें भी डाइपोल क्रिएट करता है. रिमेंबर दैट इज व्हाई यहाँ पे एक पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एक पे डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस वेरी आयनिक कंपाउंड यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो गया. शाबाश. वहां पे अब क्या हो जाएगा, नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Br या OBr प्लस यहाँ पे Ag पॉजिटिव Br नेगेटिव AgBr. शाबाश. अब ये R C डबल बॉन्ड O Br प्लस, शाबाश, यहाँ पे अब CCl4, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा. यहाँ पे Br रेडिकल, O रेडिकल, R C डबल बॉन्ड O रेडिकल प्लस Br रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा, इस पे रेडिकल आ जाएगा, वो R रेडिकल Br रेडिकल के साथ, शाबाश, RBr की फॉर्मेशन हो जाएगी. आफ्टर दैट ये रेडिकल जब यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा और वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे. यहाँ पे इस तरह से प्लस C डबल बॉन्ड O R, व्हाट वी कैन से CO2 RBr AgBr है. ये इसका मैकेनिज्म है. शाबाश. दिस इज known as Borodin-Hansdicker reaction. In case of Borodin-Hansdicker reaction, we are preparing alkyl bromides. When silver salts of carboxylic acid, ये भी मैंने यहाँ पे दिखाया किस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं. अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी भी बेस उसी सिल्वर हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएंगे तो इसका साल्ट वहां पे प्रिपेयर हो जाएगा. बेस प्लस एसिड गिव्स साल्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट वी कैन से.
दिस इज इट मैकेनिज्म। इसके लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म प्रपोज किया गया है। हाँ, शाबाश, ये इसका मैकेनिज्म है। नाउ देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, और एक यहाँ पे अगर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को देखा गया है आयोडीन के साथ ट्रीट कराएंगे, सॉल्वेंट यही होगा CCl4। यहां पे देखा गया है अल्काइल आयोडाइड की फॉर्मेशन नहीं हो जाती है, ये ध्यान दे दीजिए। यहां पे डियर स्टूडेंट्स एस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, RCOOR प्लस AgI। दिस इज 2 times एंड दिस इज 2 times, रिमेंबर इट, ये याद रख लीजिए। हाँ, शाबाश बेटा। अगर हमने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन के साथ ट्रीट कराया, वहां पे अल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशन नहीं होगी, वहां पे एक एस्टर की प्रिपरेशन होती है। दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स में भी हम यहाँ वहां पे ये पढ़ लेंगे, और सिल्वर आयोडाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शाबाश। Remember that when silver salts of carboxylic acids are treated with bromine, there is the formation of alkyl bromides. This is Borodian-Hansdiker reaction. But when silver salts of carboxylic acids have been found to be treated with iodine in carbon tetrachloride, वहाँ पे alkyl iodides की formation नहीं हो जाती है, वहाँ पे esters की formation हो जाती है। This reaction is known as Baron-Barham Simonini reaction. Baron-Simonini reaction for the preparation of esters when silver salts of carboxylic acids are treated with iodine. This is different reaction. यहाँ पे हम alkyl bromides की preparation करा सकते हैं when silver salts of carboxylic acids are treated with bromine. This is all about the preparations of haloalkanes or alkyl halides. हाँ, वहाँ पे फर्स्ट मेथड में फिर से मैं रिपीट कर लूंगा, अल्कोहल्स से हमने प्रिपरेशन कराई अल्काइल हैलाइड्स की। आफ्टर दैट हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन, अल्काइन से भी आप करा सकते हो, सिंपल है। हाँ, और व्हाट वी कैन से एल्कीन से। हाँ, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे नेम्ड रिएक्शन डिस्कस किए, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में फिंकलस्टाइन रिएक्शन एंड स्वार्ट्स मेथड एंड आल्सो हांसडिकर रिएक्शन। और उसके बाद मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल दे दी, मैंने कहा कि अगर सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को आयोडीन के साथ ट्रीट कराएंगे तो इस तरह से रिएक्शन नहीं होती, रिएक्शन डिफरेंट है। हाँ, वहाँ पे एस्टर की फॉर्मेशन हो जाती है, वो भी एक नेम्ड रिएक्शन है, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। Thus we have completed the preparations of what we can say alkyl halides or haloalkanes. In the next lectures we will discuss about the properties of alkyl halides. तब तक के लिए all the very best.